Hi you guys, welcome back to my channel. This is Vani and today I'm doing yet another video on my lockup series and today's episode number 13 and I'm extremely excited to see what this week has in for us and I'm wearing glasses because my eyes are hurting so bad because of watching the screen all day. So this episode is gonna be all with glasses and please you guys, it would mean the world to me if I could get like 500 subscribers. I know I'm very close and it would mean the world to me if you subscribe and like this video. With that being said, let's get started. Okay, so we are getting into this episode and I'm already seeing a secret task that Laila is getting. So Laila ko is jailer room mein bulaya jata hai, right? It's a workshop room. New concept again, right? And Laila ko bola jata hai कि you are getting a secret task, okay? You will have 13 handcuffs that you need to like hide in the whole of lockup, and in the morning everybody will search for these locks, and if you do not hide them till morning, nobody will get breakfast. Like, so they're like, Varun, you are the play right now, and I want to see how he hides things because I think he can only do it at night, right? So let's see what happens. Okay, so last week apparently लैला को जेलर ने एक फॉर्म और एक मैप का फॉर्म दिया था जिसमें एक सीक्रेट रूम है where I see a vending machine with all these snacks, a cute little sofa with Netflix pillows, so cute. And apparently I think Laila access कर रहा होगा उसको या फिर उसको मिलेगी opportunity to access this after he finishes his task. Maybe you guys, I want to see what happens. Let's see. माधुरी जी को जो मैनेजर बोला गया था लास्ट वीक, यू गाइस, शी इज ऑफेंडेड एज हेल, ओके? एंड शी स्टार्ट स्पीकिंग लाइक, एक ना लड़की को ऐसे ही होना चाहिए, वो अपने हस्बैंड को मैनेज करे और पैसे कमाए. मेरे को मैनेजर बोला तुम मुझे श्रेया का मैनेजर हो, ब्लडी हेल, तुमने रियाज के साथ क्या किया? रियाज को तुमने मेंटली यहाँ पे टॉर्चर कर रखा था जब उसको बोल रहे थे तुम दिख नहीं रहे हो. आई हैव टू टेल यू समथिंग माधुरी जी, दिस शो, बिग बॉस, लॉकअप, कोई भी रियलिटी टीवी शो, it comes with a lot of pressure, a ton of pressure, and these people are already celebs, and even you now, right? So people will expect you to show your face on camera. Your fans are watching this show, so ये इतना भड़कने का, बट इट वॉज क्वाइट फनी व्हाट शी वाज सेइंग, यू नो, कि मैं तो मैनेजर बन के प्यार से खाना मतलब कमा लेती हूँ, मैं तो अपने पति को भी संभालती हूँ, अब तुम ये थोड़ा एक्सपेक्ट करो कि मैं यहाँ पे बिजनेस की बातें करने लग जाऊँगी, योगेश तुझे ये बिजनेस खोलना चाहिए, तुझे ये बिजनेस खोलना चाहिए. सो आई थिंक शी गॉट एक्सट्रीमली ऑफेंडेड, बट दिस इज क्वाइट एंटरटेनिंग. आई फील दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, यू गाइज, अगर माधुरी जी थोड़ा सा सेपरेट हो गई ना फ्रॉम and these are my noisy ass neighbors, y'all, if you're watching this, I'm telling you, you guys are so noisy, but माधुरी जी अगर अपने उस इस छोटे से सर्कल से थोड़ा बाहर आए ना, she socializes like she is doing with Ramji and Yogesh right now, I think she has the potential to go till the finale. Honestly, she will be much more visible in front of the camera like this though. That's my personal opinion. And you guys, apparently ये सिर्फ एक ही रात की थी punishment, because अभी आ चुका है punishment time, अब खत्म हो गया है. धीरज आकांक्षा चौधरी को punishment cell से बाहर निकालिए. punishment cell की चाबी कन्वेयर बेल्ट पे रख दीजिए. ओके, सो आकांक्षा चौधरी इज फ्री गाइज, एंड इट वाज सो अडोरेबल कि योगेश ने अपना बेड बाहर ही बना दिया था बेंच पे, लाइक राइट बिसाइड हर, कि मैं तेरे साथ ही सोऊंगा. दैट्स सो अडोरेबल. आई मीन ब्रो, आई थिंक योगेश को स्प्लिट्सविला में ना लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टूड करा, आई सपोज, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज जस्ट लाइक a parallel from what we saw in Splitsvilla. And Yogesh is a man, bro, for shifting his bed for his friend girl he likes, I don't know, but doing that is just so gentleman like. So I appreciate Yogesh for it. So the way Yogesh ने आकांक्षा को इतना क्यूटली उसको मतलब संभाला ना when she was crying and she was getting emotional, कि उसका जो फैन बेस है उसने उनको उसने because of them she was fan favorite of the week, and वो सोच रही है कि नाउ अब इतना सब कुछ बोल दिया तो दे माइट नॉट सपोर्ट हर एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक हर फैन बेस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, एंड पर्सनली यू गाइज, आई रियली लाइक दिस वुमन, ओके? मतलब हमेशा से ऐसा कुछ ना कुछ रहा है अबाउट आकांक्षा चौधरी दैट आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, ओके? आई एम नॉट अ फैन, बट लाइक just looking at her, the way that she keeps herself, her modeling, her work, I really like that, right?
एंड योगेश जैसे उसको संभाल रहा था कि तू मुझसे क्यों छुपा रही है अपने आंसू में, तो मेरे सामने तो कितनी बारी रो चुकी है, और वो ऐसे उसको कर रहा है एंड ही इज लाइक वाइपिंग हर टीयर्स एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स सो अडोरेबल. मतलब योगेश इज, आई एम टेलिंग यू, योगेश इज स्टीलिंग एवरीवन्स हार्ट एंड इंक्लूडिंग माइन. लाइक he is becoming pooky. He is becoming pooky as hell. And I'm telling you, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई योगेश, honestly. I don't know योगेश तुम्हें क्या लग रहा है, but इतना क्यूटली वो आकांक्षा को संभाल रहा है, so cute यार. लैला जैसे वो सीक्रेट रूम में गया है यू गाइस, एक तो वो इतना चुप चुप के गया, ठीक है, उसने वो रूम खोला, द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज टेक द चिप्स का पैकेट. इवन आई वुड हैव डन द सेम ऑल. एंड वो फिर बोल रहे चलो टास्क दिया है कर ही लेते हैं, और वो जैसे क्रॉल करके क्या सीक्रेट रूम बनाया हुआ है उन्हें, लिटरली ऑन देयर नीज दे नीड टू क्रॉल एंड गेट टू द ब्लडी सीक्रेट रूम. This was too funny to watch, even though he's not really doing much. It's just a funny way to put this secret room, but it looks awesome, yeah. The Netflix pillows and all of this TV like security camera की तरह, वो सारे वो फ्लिक्स दिखा रहे हैं. It's quite cute actually. बहुत अच्छा लगा मेरे को ये secret room. एंड हमें 2-3 जगह ही दिखाया जहाँ पे वो उसने इनको क्या बोलते हैं यार, इनको आई थिंक लॉक्स ही बोलते हैं, लाइक हैंडकफ्स लॉक्स. सो उसने 1-2 जगह करा एंड आई थिंक वो बहुत अच्छी जगह थी. उसने मैट के नीचे रखा जो उनका फोम मैट है, देन उसने ऊपर रखा जेल के. क्वाइट गुड प्लेसेस ऑनेस्टली. एंड आई थिंक उनका एक वो जो है ना कपड़े आयरन करने वाली जगह, उस पर भी उसने एक जगह रखा. तो 1-2 जगह ही दिखाई, बट आई थिंक दे वर गुड स्पॉट्स एंड ही फिनिश्ड हिज टास्क. ब्यूटिफुल, नाइस. आई थिंक अब सबको ब्रेकफास्ट मिलेगा. लैला इज सच अ बैड लायर ब्रो. बीच में पैम उठ गई एंड पैम आई वॉशरूम में बिकॉज लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, राइट. तो वो बोल रहे नहीं अभी थोड़ी देर में नींद आ जाएगी ना. ऑब्वियसली शी विल हैव अ शक ऑन यू, राइट. तुम्हारा ही सीक्रेट टास्क है तो तुमने ही हैंडकफ्स करे होंगे. तो आई थिंक उसका पल्ला भारी हो चुका है एंड आई थिंक एवरीबडी विल नो, क्योंकि पैम सबको बता देगी कि ये घूम रहा था रात में, तो इसी ने छुपाया होगा. लैला इज सो क्यूट यू गाइस. उसने पूरा छुपाया और वो क्या था, मैंने ना खाली पेट था तो मैंने इधर भी छुपा लिया, मैंने उधर भी छुपा लिया, आप देख लेना. अब आई एम सॉरी अगर कुछ भी गलत हो. ही इज लाइक ही इज वन ऑफ दोज वो शैतानी बदमाश बच्चे नहीं होते जिनको वो बोल देते कि ये करना है तो तुम्हें वो कर देते हैं. तो इट्स सो क्यूट यार. आई एग्री विद व्हाट आकांक्षा चमोले सेड कि माधुरी जी मुझे भी इतना अब इनोसेंट नहीं लगती यू गाइस. आई थिंक शी इज विशियस, शी जस्ट डज नॉट शो इट ऑन द फेस. सो जो आकांक्षा चमोले शिवांगी को बोल रही थी कि माधुरी जी मैम को तुम थोड़ा वो मत समझना, शी इज ऑल्सो दैट ओनली. एंड आई थिंक इन तीनों की जो ईगो बूस्ट हुई है ना, माधुरी, शिल्पा एंड श्रेया, आई थिंक इन लोग की इतनी ईगो बूस्ट हुई है आफ्टर द जजमेंट डे. अब ये लोग दे विल गो इनटू देयर नास्टी शिट एंड नेटफ्लिक्स वोंट से एनीथिंग. कंटेंट दे रहे हैं, ऐसे कैसे कुछ भी बोल देंगे यार, फिर वो बंद कर देंगे, उनका कंटेंट कैसे आएगा. सो I'll tell you something you guys. तो आकांक्षा चमोले तो लड़ ली माधुरी जी से, बिकॉज माधुरी जी वॉज विदाउट एनी रीजन पोकिंग. जो वो कह रही थी कि फिनाले पे हाँ मे बी क्लोज फैमिली आते हैं ऑफ द टॉप 5, गॉड नोज, राइट. बट वो ऐसी सजेशन दे रही थी, माधुरी जी बोला तो तुम्हें कैसे पता है, तुम्हें कैसे पता है. तो उनकी थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई विच वॉज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, राइट. अब आई बात दैट एवरीबडी इज एट अगेन द रेड बैच. इस हफ्ते का रीसेट हो चुका है यू गाइज. एंड आया एक नोट विच सेड अटेंशन इनमेट्स, पूरे लॉकअप में 13 हथकड़ियाँ विच इज द हैंडकफ्स छुपाए गए हैं. आज का ब्रेकफास्ट पाने के लिए आपको अगले 5 मिनट में उन 13 हथकड़ियों को ढूंढना है. Oh my god, that's tough though. 5 मिनट में, but there are a lot of people, so maybe they will pull this off. Let's see क्या होता है. So everybody started looking and लैला इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा था, नहीं इधर कुछ नहीं है गाइस, इधर कुछ नहीं है, बिकॉज उसे मना किया गाइस टू एक्चुअली हेल्प आउट. तो आई डोंट नो इफ दैट काउंट्स और नो, आई डोंट थिंक इट शुड काउंट. बट सब लोग अपनी वो हथकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं. They are like fighting for their lives trying to find these हथकड़ियाँ. Okay, so इन लोगों ने 9 out of 13 करा, which is a good thing. And लैला ने बहुत अच्छे से छुपाया था गाइस, 5 मिनट में उन्हें नहीं मिला. So pretty good I feel. सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया. Nice. So चुगली गैंग बैठ चुके हुए, श्रेया, शिल्पा एंड माधुरी जी. सॉरी आई फॉरगेट हर नेम ऑल द टाइम. सो इन लोग की चुगली टाइम चल रहा है गाइस. बाय द वे इनकी 9 ट्रेज आई हैं. सो एवरी 2 people आर सिटिंग टुगेदर एंड हैविंग फूड. ओके,
ओके एंड आज इनका ब्रेकफास्ट अच्छा है, मैंने कभी भी नहीं देखा इन लोगों को फ्रूट मिलता है सुबह सुबह, सो आई थिंक दैट्स नाइस आई सपोज। माधुरी जी कितना ट्राई कर रही है टू पुट लैला ऑन हर साइड, शी इज लाइक ये ना टीवी वाले लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। व्हाट इज शिल्पा शिंदे, शी इज ऑल्सो टीवी एक्ट्रेस राइट, शी डिड बिग बॉस बट आफ्टर दैट शी डिड डू सम शोज राइट। तो ये किसके बारे में बात कर रही है? आई थिंक शी गॉट इट ऑल मेस्ड अप, बट लैला को ये पूरा पटाने की कोशिश है। These three people are पटाउंग लैला like anything, but I don't think लैला is that बेवकूफ। He knows किसके साथ बात करनी होती है, किसके साथ नहीं करनी होती है। But I would love to see अगर वो इन लोगों को भाव देता है इतना तो। Now they are just extending it. So Ritesh came and he like आकांक्षा पूछा how are you and all of that। तो आकांक्षा को लगा कि नहीं मैं पूरे हफ्ते होंगी शायद। So अब मुझे midway समझ आया कि नहीं I'm getting out, तो I'm good। And रितेश कहता कि हम इतने भैरम क्या होते हैं, भैर पता नहीं कुछ तो बोला उसने वर्ड, ठीक है आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड नाउ। मतलब हम इतने गलत नहीं है पर तुम हो, तो उसको फालतू में टॉन्ट दिए जा रहे हैं अब आकांक्षा चौधरी को, एंड इट्स ऑफ नो यूज। तुम अगर पूरा हफ्ता रीसेट कर रहे हो सो रीसेट दिस ऑल्सो राइट, लेट्स मूव पास ऑल दिस बकवास एंड लेट्स स्टार्ट फ्रेश फॉर दिस वीक। माधुरी जी अपना बताने लग गई रितेश को कि यू नो आप दोनों क्या समझते हैं अपने आप को, आपने हमारा मोरल लो से हाई करना था पर आप हाई से लो करते रहते हो। फिर पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ न्यूसेंस वाज दैट, आई सपोज। सो फनी, यू सो फनी माधुरी जी, आई कैन नॉट बिलीव। प्लीज प्लीज, मतलब इन लोगों से तो मतलब मेरे को ऐसे दिल से होने लग गया है कि आई डोंट लाइक दैम, मेरे को कुछ पसंद नहीं आ रहा है इनका भाई। सो फाइनली यू गाइस वो टाइम आ रहा है व्हेन दे आर गोना एक्सचेंज द सेलमेट्स। तो अब सबका अदल बुदलू होने वाला है। आई वांट टू सी किसको किसको पेयर करते हैं, बिकॉज या लड़ो। हर्षद वरुण फर्स्ट पेयर, आकांक्षा चमोले एंड पैम आर टुगेदर सेकंड पेयर, राम कपूर एंड श्रेया कालरा third pair, Dheeraj and Sufi, cuties, cute, I like it. Shilpa and Shivangi, लड़ो सीरियल वाले लड़ो। योगेश को दिया गया ऑप्शन, हु विल यू चूज, माधुरी जी या आकांक्षा चौधरी? ही चूज आकांक्षा, फिर उन्होंने कहा योर न्यू रूममेट इज माधुरी जी। सो आकांक्षा को धीरज एंड सूफी के साथ रखा गया है। So these three will be sharing a cell, and she is again reminded that she will not get an opportunity to save herself or secure herself throughout the week today. So she's going to be at risk at the end. एक बंदा तो final है, that's Akanksha Chaudhary, that's going to be on stage on the next Judgment Day. Okay, so I think now Ritesh is actually going into the task of the fact. अब Akanksha is out of this mix, you all. So Sufi and Dheeraj will be playing together. Ab now this new concept is one is going to be the controller and one is going to be the dependent. Now the controller will have the opportunity to make all the decisions and dependent को उस चीज को follow करना है. That's the basic thing, you guys. I am excited to see कौन बनेगा controller and कौन बनेगा dependent. हर्षद ने लैला को ethical चीज के बारे में क्यों सुनाया कि तू थोड़ा सा टोन डाउन कर, थोड़ा ethically बोल। एथिकल तो आप भी नहीं थे जब आप वो डोर वाली चीज कर रहे थे, जब आप इतना ओवर रिएक्ट करके इतना एग्रेसिव हो रहे थे, दैट्स ऑल्सो नॉट एथिकल। सो आई डोंट नो आप किसको एथिकल का मतलब ज्ञान दे रहे हो, बिकॉज लैला डजंट नीड एनी एथिकल थिंग, ही इज एज परफेक्ट एज ही गोज। सो लैला इज द कंट्रोलर बिटवीन देम, एंड उसके बाद आकांक्षा एंड पैम की बात हुई तो पैम इज द कंट्रोलर इन दैट, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। आई थॉट चमोले करेगी, शी विल बी द कंट्रोलर, बट that's fine, I suppose. Shreya is the controller and Ram Kapoor ji is the dependent, which is so predictable. I think Ram ji को करना चाहिए था, अपना stand लेना चाहिए था. Dheeraj is the controller and Sufi is the dependent. The next one, the way Shivangi and Shilpa ji की बात हुई, that's so strange. Shivangi is like अब बताओ Shivangi, you have to put some decisions out there. तुम्हें कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, whatever you're feeling, whatever your opinions are, you know. मैं चाहती थी Shivangi बोले नहीं, I want to be the controller. That's what I wanted to hear from her, but okay, she played nice, I suppose. And Shilpa is the controller and Shivangi is the dependent. That is so weird. माधुरी जी ने controller choose किया because she was the manager of Shreya and वो इतना proudly कर रही थी, तो I think she wanted to really run this out. तो माधुरी जी is the controller and Yogesh is the dependent, which मेरे को
उल्टा दिखना था. I wanted to see Yogesh as the controller and Madhuri ji as the dependent, because that's what we have all been seeing the whole week. तो I was like इसमें भी हमें यही दिखेगा, but it's different I suppose you guys. जो भी कंट्रोलर था वो सेफ हो गया you guys. So शिल्पा, श्रेया, माधुरी जी, okay, Dheeraj, who else was there? Leila, and कौन था? And I don't know कौन था. They all got saved because they were the controller. I'm telling you, तुम्हें बनना चाहिए था controller. You should have taken initiative. पर इन लोगों ने तो ऐसे दान दे दिया अपना controller का. Okay, okay. So the dependent is dependent on the controller to save them, which makes so much sense. But इन लोगों ने एक बार ही लड़ा भी नहीं. They didn't even think about it. इन्होंने controller ऐसे दे दिया, which is so dumb, bro. इन लोगों ने कितना गलत खेला, but then they all got this weird ass band on their biceps that said dependent. Netflix. Why? So Ritesh did notice कि आकांक्षा चौधरी का मूड ही बिल्कुल मुंह ही ऐसे उतरा हुआ था, because you know इतना for no reason बोलोगे तो यार कोई भी इफेक्ट होगा. And he gave her advice that there's 4 more weeks. तो रिलैक्स, 2 हफ्ते ही हुए. एंड इवन इफ आई वॉज इन ए सिचुएशन आई वुड हैव सेड द सेम थिंग टू आकांक्षा कि अभी रिलैक्स बहन, चिल करो थोड़ा सा, अभी है टाइम, यू विल डू बेटर. बट अनफॉर्चुनेटली उसको बोला गया दैट शी इज डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी दिस वीक. सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट. सो शिल्पा शिंदे ने पहली चीज क्या करी? शी टोल्ड शिवांगी, मुझे आप हर्षित के साथ बैठते हुए नहीं दिखने चाहिए, आप थोड़ा दूरी बनाओ. मैं नहीं बोल रही बात करना छोड़ दो, बस दूरी. That's why I said शिवांगी थोड़ा लड़ लेते, थोड़ा बोल लेते that I want to be the controller. कुछ तो बोलते. You left it on her. Why child, why? Whatever is happening with Shreya and Ram, जब Shreya जाती है राम पे and she's like, you spoke to Shilpa but you didn't come to me. I wouldn't want my dad to come to me and say sorry to me. No, I'm not saying you should say sorry to me, but you should have at least spoken to me. See, this is why people say you're desperate, Shreya. But I don't like this girl. मुझे उसका हर अच्छी भी चीज़ गलत लग रही है ब्रो. मुझे इतना उस पर वो हो रहा है कि I don't want to see her on my screen. If anybody from the Netflix stream is watching this is my audience POV. इस बंदी को इतना मत दिखाओ. I don't want to see her. I want to see other people. Please show other people. The first thing Shivangi did was she went crying to Harshit ki, you know, she told me कि I cannot sit with you. I have to walk with you. उसने मुझे ऐसे बोला. You had the option to be the controller. तो मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला. प्लीज थोड़ा तो सोच लेते बहन, थोड़ा तो. भाई कितना ड्रामेटिकली दिखाया है शिवांगी और हर्षित बात नहीं कर पा रहे. इट्स अ मैटर ऑफ वन डे तुम बात नहीं कर पा रहे हो एंड तुम रो रहे हो इतना. बहुत ड्रामेटिक लगा, ओवरली ड्रामेटिक लगा. बट आई थिंक बुरा लगता है व्हेन समबडी टेल्स यू आर नॉट सपोज टू डू इट. तो पता नहीं भाई, इतना ड्रामेटिकली ऐसे म्यूजिक धुक के साथ दिखाया कि शिवांगी रो रही है. बाबा क्यों रो रहे हो? इट्स अ मैटर ऑफ वन डे. तुम अभी बात करने लग जाओगे 5-10 मिनट में टास्क के बाद, फिर कर लेना. व्हाट द श्रेया इज लाइक, पता नहीं उसको क्या चुड़ैल मुर्गी पड़ गई थी. ठीक है, no offense you guys, no offense, this was just in a fun line, no offense, sorry, but literally उसको पागल हो गई थी ऐसे ऐसे करते हुए that Shivangi was crying and उसको अलग कर दिया. So stupid, you guys look so stupid. But like Shilpa ji is like, no Madhuri ji, I did this because of this, I am doing this for this. पता नहीं why she gets so वो they are looking like fucking fools. Nobody gives 2 shits what you just did, but okay. So the weird part is that everybody is speaking to everybody, right? तो श्रेया बात कर रही है शिवांगी से, राम बात कर रहा है शिल्पा से, and they are like just saying sorry, अपना चीज़ें explain कर रहे हैं, no reason at all. So stupid. शिवांगी शिल्पा से, मतलब शिवांगी श्रेया से पूछती, do you think what Shilpa is doing is right? She's saying नहीं, what she's doing for you is good, but the way she's doing is wrong.
अभी यू आर बीइंग पागल हो रही थी तुम. Hypocrisy on another level. 2 seconds she changes herself entirely. Like she's a dual personality, bro. What the the way Shivangi shut her up. She was like, तो तुम मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली शिवांगी ने लिटरली बोला तुम अपनी खुद की बातों को इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो. यू लिटरली बीइंग सो डुअल फेस एंड डबल पर्सनैलिटी. Exactly, and now she's laughing on her face like it's a joke, whatever she did. So that's Shira Kalra for you. Shilpa ji Akanksha ji ke paas aayi, Akanksha Chaudhary ke paas, and she's like, will you do this for me? You will go and do the gada and the bed sheet because आप dependent हो ना हम पे, आप dependent हो ना. and Akanksha बोलती मैं उनका कर दूंगी, मैं आपका नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मेरी मर्जी. लड़ो 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 लड़ो. आकांक्षा चौधरी इज लाइक मैं शिवांगी की कर लूंगी, इसकी मैं नहीं करूंगी, इस औरत की मैं नहीं करूंगी, टाटा बाबा मैं नहीं करूंगी. और वो निकल लिया अपना मेकअप बैग लेके. इवन माधुरी जी सेड टू शिल्पा फाइनली आई फील लाइक शी इज एक्चुअली टॉकिंग. एंड वो बोलती है तो प्यार से बोल लो, कर लेगी, बट यू केम ऑफ वेरी एंड शी डिड केम ऑफ वेरी. तो यही मिलेगा आपको शिल्पा शिंदे, जिसकी आपकी टोन है, जैसे आप बात करते हो वो दैट इज अरे बहुत तमीज़ है तुम्हारे अंदर, तौबा तौबा बहुत तमीज़ है. और जैसे आकांक्षा चौधरी करते हो तो बदतमीज़ बच्ची बदतमीज़. एंड लिटरली आकांक्षा चौधरी ने बोला कि भाई तुम मेरी जुबान क्यों खींचने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को बोलने दो, मुझे बोलना. एग्जैक्टली सब क्यों रोक रहे हैं आकांक्षा चौधरी को. आई डोंट गेट इट बट ओके. योगेश ने बहुत बढ़िया बोला कि उसने मना कर दिया, तुमने बोला उसने मना कर दिया, लेट बी, लेट द टॉपिक गो, व्हाई आर यू स्टक ऑन इट. एंड लिटरली आकांक्षा चौधरी वाज राइट, वी आर नॉट योर स्लेव्स दैट व्हाटएवर यू गोना से वी हैव टू डू इट, राइट. तो सही है भाई. फालतू में शिल्पा शिंदे उसकी औकात पे गई और उसने भी कह दिया तो आपकी औकात क्या. उसने कहा तुम यहाँ हो ना, यहाँ पे, तो दोनों की सेम औकात. एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी सेड. शी इज नॉट रॉन्ग एनीवेयर, आई डोंट थिंक सो. आकांक्षा मस्त रिप्लाई कर रही है, वो अपनी वो टोन में है अभी तक. यू गाइस मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा. शिल्पा शिंदे जैसे बोलेगी उसको वैसे ही रिएक्शन मिलेगा. यू गाइस आई लव हाउ आकांक्षा से, मतलब शिल्पा शिंदे ने डाउन योर फिंगर, और वो कह रही है मेरी फिंगर ऊपर है. आप ऊपर हो, मैं ऊपर रखी है मैंने फिंगर. दैट वाज क्वाइट फन. बट अगेन आकांक्षा चौधरी ने एज वाला फैक्टर लाया कि आप तो 50 साल में भी नहीं सुधरे, मैं तो अभी 22-23 साल की हूँ. नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, नहीं बोलना चाहिए था. एंड ऑफकोर्स शिल्पा बोलेगी जिसकी वजह से आए हो तुम, तो ऑफकोर्स तुम भी सुनोगे तुम किसकी वजह से आए हो मैडम. सो बेसिकली शिल्पा वाज लाइक सेइंग कि तुम योगेश की वजह से आए हो. आप किसकी वजह से आए हो? बिकॉज ऑफ द फेक सेक्सुअल हरासमेंट केस दैट यू डिड. क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. आकांक्षा ने कहा कि अभी क्या करना है, तो शिल्पा कहती काम करना है तो कर लो. That was quite fun. And आकांक्षा जैसे उसके ऐसे से रिप्लाई कर रही थी, that was in her limits. ठीक है, बस वो एज वाली चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी. उसके अलावा आई फेल्ट बहुत फनी फाइट था, कूल था, सही है. शिल्पा शिंदे हैज गॉन क्रेजी. शी इज लाइक मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ. धीरज को ऐसे ऐसे बोल रही है, आकांक्षा चौधरी को बोल रही है मुझे मत सिखाओ, अभी मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास. ये ईगो नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है. लाइक यू से टू आकांक्षा दैट्स दिस इज नॉट बदतमीजी. क्या बात कर रहे हो, दिस इज नॉट बदतमीजी. क्या See, there's such a huge difference between how Shilpa Shinde asked Akanksha Chaudhary and जैसे माधुरी जी ने बोला, उसने इतना प्यार से बोला प्लीज़ कर दे, प्लीज़ कर दे, ऐसे बात करते हैं. एंड शी पीसफुली एग्रीड, आई थिंक सो. अभी तक मैंने आगे नहीं देखा, आई थिंक उसने एग्री कर लिया एंड शी इज डूइंग इट. दैट्स हाउ यू स्पीक टू समबडी. शिल्पा शिंदे को वो करनी नहीं आती बात, तो शी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब उसके नौकर है, राइट. सो या श्रेया भी चाह रही थी कि वो कलेश करे एंड यू नो शिल्पा की तरह वो करे कि यू नो तुम भी मत बैठो, तुम भी मत बैठो, तुम भी मत बैठो, तुम भी मत बैठो. एंड शी इज़ लाइक टू राम जी कि आप अपने 4 लोगों के सामने मत बैठना, मुझे आप वहाँ पे दिखने नहीं चाहिए. एंड राम जी वॉज लाइक ओके ठीक है, बिकॉज वो नहीं लड़ते भाई, राम जी नहीं लड़ते, बिल्कुल भी नहीं लड़ते भाई. ही इज़ वेरी चलाक मैन, सो आई लाइक दैट. You know, in case sets like I've told you, वो जो rock वाला set है you guys, where they have this sand thing, they have these hooks and these like वो wrestling वाले hooks wire type नहीं होते, वो है. And then they have this biggest rock thing that they have made. So good, like the sets of Lock Up, I have to say this. Wow, right? Wow, the sets, wow.
वाओ, दिस इज अ वेरी ह्यूज ट्विस्ट एंड आई एक्चुअली लाइक दिस ट्विस्ट. तो जो भी सेल मेंबर्स हैं, जो भी टीम्स में हैं, उनको अपना राशन का जो नंबर है अपने आप मैनेज करेगा. तो इन देयर पेयर्स ऑफ 2 or 3 उनको मैनेज करना है देयर राशन पानी का जो पैसा आता है, क्योंकि जनरली इट्स लाइक फॉर एवरीबडी. अब इट्स इन पेयर्स. आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट. आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट. Okay, so the controllers have to literally उनका बोझ सहना डिपेंडेंस का उनको. So this task is basically that. The controllers have to literally handle the बोझ of the dependent. I am super excited to see this task. अब वो कंट्रोलर दुखी हो रहे हैं बिकॉज द रॉक्स दैट दे हैव, इट्स लिटरली द वेट ऑफ देयर पार्टनर. सो दे नीड टू, एज लॉन्ग एज दे कैन कैरी दैट विद देम, they are gonna get that much ration pani, which is crazy play. And अब लोगों को regret हो रहा होगा कि हमने इनको क्यों बना दिया कंट्रोलर, because ये लोग कैसे वेट उठाएंगे. so excited. Okay, so जो भी रॉक वाली चीज गिरा देता है उसको 10,000 मिलेगा for the whole week to manage their ration pani amongst 2 or 3 people. And जो भी end तक कर पाया, they will get 1 lakh in their budget for खर्चा पानी. Crazy gameplay, crazy. And सब लोग ready हुए to hold all of this. My prediction is end तक धीरज ही जा पाएगा, या फिर it could also be श्रेया, because श्रेया is very physically strong. तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. लैला भी somewhat I feel like end तक जाएगा, but apart from that सब गिरा देंगे. is my prediction y'all. Let's see. मैंने अभी तक देखा नहीं है. I wanna see. Oh, so never mind. जो सबसे पहले ड्रॉप करेगा उसके 10,000 होंगे. So I think वो increase होता जाएगा with the time. So पहले जो भी गिराएगा that will get 10,000 in their account for the whole week, which is a very less amount you guys. बहुत कम amount है for खर्चा पानी. So देखते हैं क्या होता है. एंड आई फील लाइक स्टार्टिंग में ही माधुरी जी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बिकॉज योगेश का वेट भी ऑफकोर्स ज़्यादा है. एंड शी इज़, मैं एज नहीं शेम करना चाहती, बट शी इज़ क्वाइट ओल्ड यू गाइस, तो ऑफकोर्स उनका नहीं उठा पाती. तो वो दिख रहा था दैट शी स्ट्रगलिंग. श्रेया की स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगी, वेयर शी वाज लाइक ऑन हर बैक एंड उसने ऐसे पकड़ा हुआ था. गुड स्ट्रैटेजी. इवन शिल्पा जी वॉज होल्डिंग दैट वेट वेरी गुड, बिकॉज आई थिंक शिवांगी का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो कुछ भी हो सकता है. एंड माधुरी जी ने गिरा दिया. तो माधुरी जी एंड योगेश को मिलते हैं 10,000 फॉर द होल वीक. आई डोंट नो हाउ दे आर गोना मैनेज ब्रो. आई डोंट नो. दे विल गेट लाइक बेयरली इनफ मील्स, क्योंकि 1,000 की प्लेट आती है मानो. सो दे कैन जस्ट स्पेंड लाइक 3K हर दिन. लिटरली देयर मिनिमम. कोई ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद ये चल सकता है अमाउंट, वरना तो आई डोंट थिंक दिस अमाउंट इज गोना वर्क एक्चुअली. सो नेक्स्ट इज 15,000 विच इज अगेन वेरी लेस, बट उसमें थोड़े बहुत बेवरेजेस आ जाएंगे. एंड एक प्रीमियम मील अगर इनको किसी ने खाना होगा वो आ सकता है, बिकॉज अगेन इट्स $1,000 फॉर अ मील. सो आई थिंक इट्स गोना बी शिल्पा शिंदे दैट्स गोना गो डाउन नेक्स्ट, बट लेट्स सी. Yep, like my prediction, Shilpa Shinde ने next गिराया, so she got 15,000. Shilpa Shinde and Shivangi, but Shivangi was boosting her up कि मतलब मैं ये करूँगी आपके लिए, करते रहो, but did not work. So she got 15,000, which is fine I think. Next is 25,000 and मेरी prediction बोलती है either Shreya will go or Pam will go in this round, क्योंकि दोनों ही थोड़ा struggle कर रहे हैं, दोनों sweat कर रहे हैं. So let's see. So you guys, I see 2 people struggling a lot, which is Laila and Pam थोड़ा struggle कर रहे हैं. Laila का गिर सकता है इसमें. श्रेया जो चला रही है bro, whatever I feel about her, respect to her for holding Ramji's weight. The way she's so steady and वो हिल नहीं रही है वो बंदी भाई. Crazy level played by Shreya Kalra, amazingly played bro. Laila and Harshit को मिला 25,000. Laila ने गिरा दिया guys, that's fine, बहुत अच्छा खेला उसने. I want to see how next goes. So I think Pam ही जाएगी next is what I feel. Pam well freaking played you all. Like she got herself and Chamole 50,000 to spend on kharcha pani. Amazingly played by Pam for sure. So last amount है 80,000 and 1 lakh between Shreya and Dheeraj. मुझे लग रहा है श्रेया को 80,000 मिलेगा and Dheeraj will get 1 lakh, not because he's a man, but he is showing off. लिटरली ही शोइंग ऑफ कि उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ है. तो आई डोंट नो, उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ है और वो एक हाथ ऐसे लाइक ही इज ऑन अ ब्लडी स्कूटी, ही इज हैविंग हवाई. तो मे बी ही इज गेटिंग टू ओवर कॉन्फिडेंट, इट कुड बी ईदर वे. सो आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस. श्रेया सेड वाहे गुरु हिम्मत दे एंड इट वर्कड. धीरज का गिर गया. ओवर कॉन्फिडेंस गेट्स यू नोवेयर यू गाइस. वो ऐसे जो हवा में हाथ रखा हुआ था ना, it did not work and धीरज का गिर गया. तो धीरज got 80,000 for Dheeraj Sufi and Akanksha Chaudhary. Shreya well
freaking played. Shreya Kalra played so well in this task. I have to give it to her. क्या बंदी की back में strength है भाई साहब. The amount of strength she has in her back, it's crazy level. Shreya, respect man, respect. She got 1 lakh for herself and Ramji. Amazingly played Shreya, amazingly played. योगेश को डांट पड़ गई जब वो कह रहा था कि सर आपको ऐसे ही करना था, तो रितेश ने कहा तुम ऐसे नहीं करोगे. ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा ही टारगेट कर रहे हैं योगेश एंड आकांक्षा को, इज़ व्हाट आई फील यू गाइज. मतलब बहुत ही, मतलब उनको पिन पॉइंट किया जा रहा है फॉर नो रीजन. इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट. आई डोंट नो, तुम्हें क्या लग रहा है यू गाइज, डू लेट मी नो. ओके, सो रितेश ने क्लियर करा कि यू नो द बॉडी वेट दैट यू सी इज 50%, क्योंकि पूरा बॉडी वेट डालना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो सबके पास 50% था, बट स्टिल श्रेया कालरा प्लेड अमेजिंगली वेल y'all, अमेजिंगली वेल, I'm telling you. श्रेया जैसे एक्सप्लेन करती है ना, शी इज बीन गोइंग टू द जिम फॉर 6-7 years एंड शी इज बीन बिल्डिंग हर बॉडी. आर्म रेसलिंग करती है वो. kudos bro, hats off to you. You're a battamiz girl, but what you just played right now, that's what I want to see. I want to see this side of Shreya Kalra. I want to see the good side of her, you know. I'm done seeing all this battamizi and all of that. I want to see this side. And Shreya Kalra, respect to you, you played amazingly well bro. So everybody got their individual access card and Ritesh ने clear करा whatever you want to do with that card. मतलब तुम्हें खरीदना है, तुम्हें एक दूसरे के साथ शेयर करना है, that's all up to you. Okay, then तो almost like सही रहा इनका. मतलब अगर everybody shares, then it's pretty good amount that they can go for the whole week. So okay, so आकांक्षा चौधरी को एक्चुअली सूफी वाले से नहीं होगा वो, बट सूफी एंड धीरज से नहीं होगा. बट आकांक्षा चौधरी के लिए जो भी ट्रे आएगी वो सिर्फ उसकी होगी. एंड अगर उसको ट्रे ही देते हैं खाना, तो शी विल सर्वाइव ऑन दैट सर्वाइवल किट, आलू सूप वाला जो थिंग था. ओके, बेचारा योगेश सबको सॉरी बोलता रहता है भाई. उसको बोलता है रितेश को कि मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी. और वो ऐसे माफी भी मांग रहा था पूरे टाइम. सो क्यूट है यार, बड़ा बंदा तो क्यूट है भाई, तुम मानो ना मानो. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोमो, बिकॉज सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं गाइस. आई एम सुपर एक्साइटेड. तो एक दूसरे के इनको सीक्रेट्स बचाने हैं एंड दैट्स बेसिकली देयर टास्क. एंड वो लोग एक डब्बे में होते हैं, देयर इज अ कैमरा इन बिटवीन, और वैसे से झाँक रहे होते हैं. सुपर एक्साइटेड, सुपर थ्रिल टू सी क्या होने वाला है, एंड लेट्स सी कल क्या होता है. With that being said, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please subscribe and like. It would mean the world to me. I am hoping for 500 subscribers, you guys. मैं इतना सही होप कर रहा हूँ. So अगर तुम्हारा मन करे, please do subscribe and like this video, and I'll catch you in the next one. Till then, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखो. I'll see you guys tomorrow. Bye bye.